بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدلیہ میں شدید ترین لڑائی کروانے کے بعد نواز شریف اب پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو واحد ادارہ پاکستان کا انٹیکٹ ہے، جس کی ٹاپ لیول پہ لڑائی نہیں ہوتی، اس میں بھی لڑائی کروا دی جائے۔ 1999 میں نواز شریف نے اپنی مرضی کا پہلے ڈی جی آئی ایس آئی لگوایا اور پھر اس کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی، آؤٹ آف ٹرن۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ملک میں اگلے 9 سال کے لیے مارشل لا لگ گیا۔ نواز شریف ایسی ہی کوشش مبینہ طور پہ دوبارہ کر رہا ہے، وہ ٹاپ پہ بیٹھے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بلکہ یہیں سے دکھا دیتا ہوں کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، ذرائع کے مطابق گوال منڈیلا حافظ سے مایوس ہو چکا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری میں ناکامی اور عدالتوں کے مینج نہ ہونے سے گوال منڈیلا حافظ پر اعتماد کھو چکا ہے، اور اب فاسٹ بولر یعنی صدیوں کے بیٹے کو اگلا چیف بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ حافظ اور ڈرٹی ہیری براہ راست رابطے میں ہیں۔ یاد رکھیں، ڈرٹی ہیری ویسے صدیوں کے بیٹے کے نیچے کام کرتا ہے، لیکن حافظ اور ڈرٹی ہیری ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ فاسٹ بولر کو بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ حافظ کو لگتا ہے کہ فاسٹ بولر یعنی صدیوں کا بیٹا اس کے احکامات کو ڈیفائی کر رہا ہے، یعنی نہیں مان رہا، جبکہ فاسٹ بولر اور صدیوں کے بیٹے کو لگتا ہے کہ حافظ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ نون لیگ بھی حافظ پر ڈبل گیم کا الزام لگا چکی ہے۔ حافظ کے خلاف نادرہ ریکارڈ والی نام نہاد سازش، آپ کو پتہ ہے نا، بڑی خبریں اس کے حوالے سے چلی ہیں کہ جن کی فیملی کا کوئی ریکارڈ ہے تو وہ نکالا، تو فیض امید کرتا رہا، تو اظہر عباس کرتا رہا، تو پتہ نہیں کیا نہ کیا کہتے رہے۔ تو یہ جو نادرہ ریکارڈ والی نام نہاد سازش بھی دراصل فاسٹ بولر کا کیا دھرا ہے، جسے فیض حمید پر ڈال رہے ہیں۔ حافظ کی تعیناتی میں فاسٹ بولر کا اہم کردار تھا، لیکن اس وقت صورتحال بدل چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق قاضی عیسیٰ بھی فاسٹ بولر کے کیمپ میں ہیں اور حافظ کے خلاف سازش میں اہم کردار ہیں۔ اگرچہ حافظ کوئی اچھا کردار نہیں ہے، لیکن حافظ کے خلاف موجودہ حرکات صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ گوال منڈی کا جو انقلابی ہے، اس کی مکروہ خواہشات پر کوشش کے باوجود ابھی تک عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ نواز شریف کو جلدی ہے، وہ پورے نظام کو تہہ و بالا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ذرائع سے، کہہ دیتے ہیں ہم سب کے ذرائع سے آ رہی ہیں، تو ڈاٹس کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ذرائع کی جو خبریں ہیں کیا وہ میک سینس بھی کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم کابینہ سے منظوری لے کے تبدیل کر سکتا ہے، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے نا عہدہ، وہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں مل کے، تب تبدیلی ہوتی ہے۔ کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے قانونی طور پہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب جنرل فیض حمید کو کچھ اور مہینے رکھنے کی کوشش کی تو کتنا بڑا پھڈا بن گیا تھا، یہاں تک کہ صدیوں کے بیٹے کو پھر انسٹال کیا گیا وہاں پہ، نہیں مانے۔ تو ان اے وے آرمی چیف کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو اکیلے تبدیل کرنا، پھڈے بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جب پھڈے بن رہے ہوں، جب آپ پہلے ہی کمزور وکٹ پر ہوں، کیونکہ دوسری طرف بھی کوئی آپ کے اچھے حالات نہیں چل رہے، عوام بھی آپ کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، ایک بڑا بیانیہ بنا ہوا ہے، آپ ایک کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں، تو اب جو آپ کے اتحادی ہیں آپ ان کو تو نہیں ناراض کر سکتے۔ ایسی صورتحال میں بالکل یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنا جبر، ننگا کرنا، مارنا، لٹکانا، قتل و غارت، تشدد، جو کچھ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے صدیوں کے بیٹے کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں، بغلول تھا، اب نہیں ہے، حافظ ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو تبدیل نہیں ہوا، اور وہ ہے صدیوں کا بیٹا، فاسٹ باؤلر۔ وہ تبدیل نہیں ہوا، وہ وہی ہے۔ تو اس کے نیچے جو لوگ اس کو غائب کیا، اس کو اٹھا لیا، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کو اٹھایا، ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی، میں ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں، پاسبل تو ہے نا، لیکن یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں تو ڈاٹ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہا ہے، وہ کیوں عوام کی گالیاں کھا رہا ہے، کیوں سب کو اپنے خلاف کر رہا ہے عوام کو؟ اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے، بغلول کا انجام دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ شاید نظر کسی اس سے بھی بڑے عہدے پر ہے، اور اگر حافظ کو ہٹا لیا جاتا ہے کسی طریقے سے، جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، تو پھر پیچھے کون ہے؟ اپریل میں جو آخری بیچ میٹ تھے جنرل فیض حمید کے، جنرل اظہر عباس کے، جنرل نعمان، وہ بھی اسی مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنرل نعمان بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ سائر شمشاد مرزا جو تھے ان کے ساتھ کے، وہ بن گئے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف، تو پیچھے تو کوئی بچا نہیں۔
मई में इसके बाद जनरल आमिर रिटायर हो रहे हैं। जनरल आमिर जो आसिफ जरदारी के खास उल खास हैं, और आसिफ जरदारी ने इजहार भी किया कि मेरी कोशिश थी कि जनरल आमिर आर्मी चीफ बने, वो भी रिटायर हो रहे हैं। आपको पता है कि इन दो रिटायरमेंट्स के बाद जो अप्रैल और मई में हो रही हैं, सबसे सीनियर जर्नैल पाकिस्तान की आर्मी में कौन होगा? गैस करें। सदियों का बेटा। ऑटोमेटिक चॉइस। नवाज शरीफ ने जैसे अभी कहा ना कि मैं सीनियर मोस्ट को बनाऊंगा, तब भी यही बहाना होगा कि इसको उठा के सीनियर मोस्ट को बनाते हैं। तो इस तरह की गेम डॉट कनेक्ट करें तो हो सकती है। और नवाज शरीफ के मफादात का जो भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जो भी नवाज शरीफ को डिलीवर करके देगा, नवाज शरीफ के लिए तो वही सगा है ना। नवाज शरीफ को कोई पैसे तो नहीं देने लगा ला के। नवाज शरीफ को सिर्फ इक़्तिदार और पावर चाहिए, जो उसे वो दिलाएगा वो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा सगा होगा। मसला ये है कि मैं बार बार कहता हूं, और ये मेरा मानना है, आप जब एक खास कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उस कुर्सी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप अगर पहले एक थग भी हो ना, उस कुर्सी पे बैठने के बाद आपको कुछ सोचना जरूर पड़ता है। एक बार सोच जरूर आती है। ये लादा बात है कि आप बगलोल की तरह अपना जमीर मुर्दा करके और सब कुछ करना शुरू कर दें। अगर आप में राय बराबर भी जमीर है, अगर हाफिज में भी मौजूदा जो कुर्सी पे बैठा है राय बराबर भी जमीर है, तो नवाज शरीफ की कोई शर्त भी पूरी नहीं होगी। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हो सकती है। नहीं, अगर ये पॉसिबल होता तो नायल करो, जेल में डालो, उसे रोको किसी भी तरह से, इसकी पार्टी को तोड़ो, हर हाल में हमें इक़्तिदार दो। यानी ये पूरा एक पैकेज है जो नवाज शरीफ ने रखा हुआ है सामने, जो डिलीवर करके देगा नवाज शरीफ उसके साथ है। अब ये लालच कैसे देता है? ये जजेस को लालच देता है कि जब आप रिटायर होंगे ना, आपको बड़े से बड़ा ओहदा मिलेगा, सदर बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फौरन आपको कि एम्बेसी में लगा देंगे। ये वादे होते हैं ना। इसी तरह इदारों के अंदर भी ये लोगों को ऐसे ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वो बंदा है जिसने जर्नैलों को, सिटिंग जर्नैलों को गाड़ियों की चाबियां BMW की देने की कोशिश की है खरीदने के लिए। तो नवाज शरीफ से तो हर चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है ना। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये कोशिश हो रही हो कि ओहदे के लालच दिए जा रहे हों, फूट डलवा के और अपना काम निकलवाया जाए। इससे प्रेशर भी बनाना मकसूद हो सकता है कि जब हम प्रेशर डालेंगे तो हाफिज ही हमें वो सब कुछ करके दे देगा, डिलीवर करके दे देगा, इमरान खान हमें प्लेट में रख के दे देगा। ये सब प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि ये खतरनाक रिपोर्ट्स हैं। मैं इशारतन आपको बताता हूं कि किस तरह की घटिया हरकत की गई है कि एक मौलवी को जिसने निकाह पढ़ाया है, वो जाता है और कहता है जी मैं बयान देता हूं कि इमरान खान ने इद्दत पूरी करवाए बगैर ही निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी। ये केस कौन बनवा रहा है? सबको पता है। इसके पीछे सदियों का बेटा है, कोई और नहीं। 100% सदियों का बेटा है इसके पीछे। और ये मौलवी वही है जिसने रिपोर्टेडली बाजवा का भी दोबारा निकाह करवाया था कि ये पता नहीं है कादियानी है या नहीं है, तो फिर दोबारा निकाह करवाया गया था। ये रिपोर्टेडली बात की जाती है, पता नहीं है सच है या नहीं, कि ये भी इसी मौलवी ने करवाया था। और इस मौलवी को इमरान खान से मिलवाया था जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, और अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर हूं, तो मैं इमरान खान को मशवरा दूंगा कि जब भी ये कोई काम करते हैं या इनका कोई भी बंदा भेजा हुआ आपके पास होता है, वो हमेशा शुरू से आपके खिलाफ ट्रैप सेट कर रहे थे। ममनुआ फंडिंग का ट्रैप था, तोशाखाना का ट्रैप था। आपको याद है ना कि आपको जो आपका मिलिट्री सेक्रेटरी था, खुद उसने भिजवा दिए थे घर में तोहफे। हर चीज में आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग की जा रही थी। ये भी उसी ट्रैप का हिस्सा था। ये बंदा स्पेशल भेजा गया जिसने बाद में फ्यूचर में गवाह बनना था। तो बयान मौजूद है कि इमरान खान की जो एहलिया है वो कहती है मैं अपनी पहली शादी से इद्दत पूरी करके कुरान के हुक्म के मुताबिक खामद के घर से निकली थी। जो 3 माह की इद्दत होती है, वो अल्लाह का हुक्म तो यही है ना कि अपने खामद जो है उसके घर में आप इद्दत पूरी करो, और इद्दत पूरी करके फिर निकलो। वो कहती है मैंने ना सिर्फ इद्दत वहां से पूरी करके मैं बाहर निकली, बल्कि 6-7 महीने बाद मेरा इमरान खान से निकाह हुआ। ये तो उनका दावा है, और ये ऑन रिकॉर्ड दावा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक खबर दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि कितनी भोंडी कोशिश की गई है। इद्दत के बगैर दूसरा निकाह बातिल या जिना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट यह फैसला दे चुकी है एक पुराने केस में। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा फैसला एक शहरी की दायर करदा दरख्वास्त पर दिया गया, जिसने अपनी साबका ज़ौजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसकी साबका अहलिया ने तलाक के बाद इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी की है। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने वजाहत दी कि खातून का इद्दत के बगैर शादी करना गैर फितरी है, लेकिन मना नहीं है। इस केस में इद्दत से मुराद वो मुद्दत है जो खातून को निकाह टूटने के बाद गुजारनी पड़ती है। ये फौजदारी कार्रवाई की बात कर रहा था। ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको ये अगला भी दिखाता हूँ। ये देखें जरा, बेजाब्ता शादी शरीयत के मुतसादिम नहीं। ये भी फैसला देख लें आप। ये पुराना फैसला है, आज से 8 साल पहले का। इसमें लिखा हुआ है जस्टिस शाहिद नदीम ने खुशाब की सेशन अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक मुकदमे के समाअत के दौरान अपने फैसले में कहा
जो शादी बेजाब्ता हो इसे गैर कानूनी शादी तस्वुर न किया जाए। ख्याल रहे कि खुशाब की सेशन कोर्ट ने एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया था जिसमें इस्तदा की गई थी कि एक शख्स के खिलाफ खातून को इद्दत के दौरान अगवा करके इसे शादी करने का इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया जाए। और फिर इन्होंने इस फैसले में लिखा था कि मुद्दत का तयन औरत ही कर सकती है। औरत को पता है कि 3 उसके जो पीरियड्स होते हैं वो कितने मुद्दत में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको बताता हूँ कि आपकी अगर तलाक आज हुई है, कल फॉर एग्जाम्पल आपको हो जाता है, दूसरी बार आपको होने के 21 दिन बाद मेडिकली फिर हो सकता है, और फिर उसके 21 दिन बाद फिर हो सकता है। ये तो टोटल 42 दिन है, 3 महीने तो नहीं बनते, इसमें 3 आपके हो सकते हैं और आपका इद्दत पूरी हो जाती है। कुरान में तो ये लिखा हुआ है ना कि आपने 3 वो साइकिल पूरे करने हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने 3 महीने ही पूरे करने हैं। तो 40-42 दिन में भी हो सकता है टेक्निकली। तो मैं तो आपको मेडिकल बता रहा हूं टर्म कि पॉसिबल कब तक है, ठीक है, 42 दिन में हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये होता भी फिर भी ये केस नहीं बनता, फिर भी ये केस नहीं बनता। ये कितने गिर गए हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं है फिर भी ये कर रहे हैं। एक गवाह बना दिया जो उसको, झूठे इंसान को मर्ड्स लेंगे। क्यों? टेरियन वाइट का केस तबाह हो गया है, तोशा खाना केस तबाह हो गया है, ममनुआ फंडिंग केस तबाह हो गया है। अब तोशा खाना में जी वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि जल्दी से फौजदारी कार्रवाई मुकम्मल करें और हम शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते, ये केस पेंडिंग है, जल्दी इसको फिनिश करें। तो अब ये निचली अदालत से इमरान खान को फौरी तौर पर तोशा खाना केस में नायल करवाएंगे, उसके बाद ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ये अब इन्होंने फैसला किया है कि छोटी अदालत से हम फैसला करवा लेते हैं, बेशक बाद में हाई कोर्ट उड़ा दे, वो अपील लगते लगते लगेगी। महीने में लगती है, 6 महीने में लगती है, साल में लगती है, 2 साल में लगती है अपील, क्या पता कितने अरसे में लगेगी। तो जब अपील लगेगी फिर देखा जाएगा, तब तक हम इमरान खान से जान छुड़ा चुके होंगे। तो बाय द वे इन्होंने ये फैसला भी किया है। तो ये हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान ने एक कोशिश की है, बहरहाल इन नादीदों से दोबारा से कोशिश की है पैचअप करने की। इमरान खान ने आज वाजिया किया है कि बहुत सारा तशद्दुद, बहुत सारा कुछ जो हो रहा है ये पीडीएम भी करवा रही है ताकि इदारों और इमरान खान के दरमियान गलतफहमी पैदा हो। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें पुलिस ने पकड़ा और बाद में पुलिस ने कहा नहीं नहीं हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, कर सारा पुलिस रही थी, ऐसा भी हुआ है। तो इमरान खान का ये कहना है कि जहां जाहिर है कि ज्यादतियां सबको नजर आ रही हैं किसने की हैं, लेकिन वहां बहुत सारा कुछ मिसाला और भी डाला गया राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ जैसे लोगों की तरफ से, मरियम की तरफ से, कि जानबूझ के इदारों की और तहरीक इंसाफ की लड़ाई हो। तो आज इमरान खान ने इसका जिक्र भी किया है और कहा है कि इससे मुल्क का फायदा नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इदारा आपस में लड़े, फायदा इसमें है कि ये लड़ाई ना हो। तो देखते हैं कि जो इमरान खान ने एक दोबारा से पैचअप की कोशिश की है, हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, इसका क्या जवाब आता है, ये हमें पता चल जाएगा आने वाले चंद दिनों में। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।